Good afternoon, students. In previous video, we discussed about the pollination. In previous video, I discussed with you abiotic means of pollination. Today, I am continuing the remaining part of pollination. And in remaining part of pollination by the biotic agents. Biotic agents हैं. These biotic agents are the living agents. They are the living organisms. These living organisms help in the process of pollination. It includes insects, birds, and bat. Insect, birds, and bat. And when the biotic agencies are involved in this process, first we take the case, in third case, entomophily. Entomophily. It means pollination is take place with the help of insects. With the help of insects. Insects are the pollinating agents. It is called entomophily. Moths, beetles, bees, wasp, butterfly, and ants. These all are the means of pollination, because they all are the insects, and these insects help in the process of pollination. Among all these insects, bees are the most common pollinating agents. यानी कि there are so many insects belonging to the phylum Arthropoda. Last week study, it is the largest phylum. तो it means ये bees जो है, they are the pollinating agents, but they are commonly used by the plants. Why they do, or why they visit to the flower? They visit to the flower in search of nectar. इनको नेक्टर खाना होता है, उसके लिए जाते हैं. Edible pollen grains and shelter. These are the means which attract the bees for the pollination. जो bees जो है वो pollination के लिए attract होती है due to these. अब यहाँ पर those plants which are pollinated by the insects, यानी जो pollination है वो insect कर रही है, तो in them they have some unique feature. यानी जो flowers हैं they have some special features. Number one, conspicuous है. Bright color petals are bright color, they attract the insects. Fragrance है उनमें, smell है. और pollen grains have the pollen kit. जो pollen grains है उनमें pollen kit होती है. Pollen kit जो होती है, it is present to the outer layer of the pollen grain. This pollen kit is sticky in nature. This pollen kit is sticky in nature, which stick with the body of the insects when they visit to the flower for nectar, pollen grains, or for shelter. So this pollen kit is sticky in nature. When the insects move toward another flower, then pollen grains fall to the another flower. एक से लेकर के दूसरे पर जाकर गिर जाते हैं, जिसे हम पोलिनेशन कहते हैं. अब pollen grains are produced in less quantity, जबकि जो एबायोटिक में ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे कम प्रोड्यूस हो रहे हैं. फ्लावर्स का साइज भी स्मॉल होता है, स्मॉल साइज के फ्लावर है. और ये फ्लावर जो स्मॉल साइज के फ्लावर है,
ये क्या होता है, दे आर अरेंज ऑन द फ्लोरल एक्सिस। ये फ्लोरल एक्सिस है, इसके ऊपर अरेंज होते हैं एंड मेक द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस, दे मेक द इन्फ्लोरेसेंस। तो यहां पे इन्फ्लोरेसेंस जो फ्लोरल एक्सिस है, द फ्लावर्स आर अरेंज टू देयर। तो यहां पर ये जो फ्लावर्स हैं जो स्मॉल साइज के, यहां पे इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं। अब जो ये आपके इंसेक्ट्स हैं, दे कैरी द पोलन ग्रेन्स। तो व्हाट इज द बेनिफिट टू द इंसेक्ट्स एंड व्हाट इज द बेनिफिट टू द प्लांट्स? बोथ आर इक्वली बेनिफिटेड। Insects get the pollen grain, they get the nectar and also get the shelter. But how they reach the benefit to the plant? Plant को कैसे benefit होता है? They carry the pollen grains. वो pollination में help कर देते हैं। तो this is the mutualism और symbiotic association। इसे म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं और इसको हम सिम्बायोटिक कहते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब है बोथ आर इक्वली बेनिफिटेड। जैसे कि लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, दे लिव इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो बोथ आर बैक्टीरिया आल्सो बेनिफिटेड एंड द रूट्स आर आल्सो बी प्रोवाइड अ शेल्टर टू देम। उन्हें शेल्टर मिल जाती है और बैक्टीरिया जो राइजो बैक्टीरिया, इट फिक्स द नाइट्रोजन and increase the fertility of the soil. तो the same thing is here. यहां पर एक याका प्लांट है। This plant has the mutualism, has the obligate symbiotic association with the moth. याका ये प्लांट है, यहां पर जो moth है, both have obligate symbiotic relationship, ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसका मतलब यह है कि दे आर कंप्लीटली डिपेंड वन ऑन द अनदर और दे डिपेंड ईच अदर, बिकॉज द लाइफ साइकिल ऑफ याका कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट मोथ एंड मोथ लाइफ साइकिल कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट याका। अगर में से एक भी एलिमिनेट हो जाए तो देन द another will not be survive। तो इसे कहते हैं ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जहां दोनों का एक दूसरे से बहुत जबरदस्त एसोसिएशन होता है। यानी इससे एसोसिएशन क्या होगा, वन कैन नॉट लिव विदाउट द अनदर। एक है एमोर्फोफेलस, इट इज अनदर एग्जांपल जिसमें इंसेक्ट पोलिनेशन करते हैं। इट इज ए टॉलेस्ट फ्लावर, इट इज टॉलेस्ट फ्लावर। उसकी जो फीट है, हाइट है, that is 6 feet. Its height is 6 feet. Insects lay the eggs in the flower and then pollination occur. इसमें जिसकी फ्लावर की जो हाइट है 6 फीट की है, यहां पे पोलिनेशन इंसेक्ट करते हैं, वो वहां पे एग ले करते हैं। तो इसका मतलब ऑल दिस इज अबाउट द एंटोमोफिली और पोलिनेशन बाय द इंसेक्ट। नेक्स्ट आता है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली यानी कि ये इसमें जो पोलिनेशन है, इट इज डन बाय द बर्ड्स। बर्ड्स करती हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बर्ड्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं वो हमिंग बर्ड्स है और सन बर्ड है। हमिंग बर्ड है एंड सन बर्ड्स है। बोथ दीज बर्ड्स visit the flower for nectar. Both these birds visit the flower for nectar. When they suck the nectar, pollen grains are stick with the body of them. And when these birds move towards the another flower and suck the nectar to there, the pollen grains which are stick with the body, that will be fall down to there. So they have in pollination. Like insect,
बर्ड्स आर नॉट द कॉमन पोलिनेशन एजेंसी, ज्यादा नहीं करते, बहुत कम फ्लावर्स के अंदर दे डू इट। इसके बाद यहां पर अदर पोलिनेटिंग एजेंट्स आते हैं, बिसाइड्स द इंसेक्ट है एंड बर्ड्स है, रोडेंट्स है, लीमर यानी प्राइमेट, रेप्टाइल्स, जीको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड, bat, snail, all these are the other animals which help in the pollination। ये हमारे अदर एनिमल्स हैं जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं बिसाइड्स द इंसेक्ट एंड द बर्ड्स, दे आर द पोलिनेटिंग एजेंट्स। तो अब दिस इज अबाउट द पोलिनेशन। अब आता है यहां पे नेक्स्ट टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। देखिए प्लांट में आपने पढ़ा सेल पोलिनेशन भी होता है और क्रॉस पोलिनेशन भी होता है। सेल पोलिनेशन जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर होता है, हर्माफ्रोडाइट के अंदर था, क्योंकि मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। बट इन सेल पोलिनेशन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। ओवर ए लॉन्ग पीरियड, काफी लंबे टाइम के बाद they become the inbreeding depression। there is a problem of the inbreeding depression। यहां पे inbreeding depression की प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि वहां पर होमोजाइगोसिटी बन जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट इज डिक्रीज, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर यूज, यानी कि टू डिस्करेज इनब्रीडिंग और सेल पोलिनेशन और टू एनकरेज द आउटब्रीडिंग मेथड और एनकरेज द क्रॉस पोलिनेशन और क्रॉस ब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग का मतलब है ब्रीडिंग बिटवीन द टू डिफरेंट ब्रीड्स और डिफरेंट स्पीशीज। टू डिफरेंट ब्रीड्स में हो रहा है या टू डिफरेंट स्पीशीज में हो रहा है, उसको हम आउटब्रीडिंग कहते हैं। अब यहां पर जब ये सेल पोलिनेशन होता है एंड देयर इज द प्रॉब्लम जनरेट इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी, फ्लावर के अंदर प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, क्योंकि ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर ओवर द जनरेशन। तो टू डिस्करेज इट देयर इज द नीड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। यहां पर क्रॉस पोलिनेशन की जरूरत है, एलोगैमी की जरूरत है, जीनोगैमी की जरूरत है। इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड अबाउट इट इन डिटेल। तो ये क्रॉस पोलिनेशन यहां होता है। अब क्रॉस पोलिनेशन जब होगा तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, बिकॉज इन क्रॉस पोलिनेशन द कैरेक्टर्स कम from different species or different breeds through the genes। तो डिवाइसेस में अगर देखें, सबसे पहला है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी इसमें क्या होता है? डाइकोगैमी में देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन इन द मैच्योरेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। Male gamete and female gamete both are mature at different time, not at the same time। तो there is a lack of synchronization। तो इसमें दो कंडीशन है, प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। प्रोटेंडेड, प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री का मतलब है जब मेल गैमेट्स मैच्योर अर्ली देन द फीमेल गैमेट। फीमेल से मेल गैमेट पहले मैच्योर होते हैं, उसे प्रोटेंड्री कहते हैं। एग्जाम्पल है सनफ्लावर एंड साल्विया। इस सनफ्लावर साल्विया के अंदर प्रोटेंड्री कंडीशन है। और प्रोटोगाइनी का मतलब है व्हेन द फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड बिफोर द मैच्योरेशन ऑफ मेल गैमेट। इसमें फीमेल गैमेट
पहले मैच्योर होते हैं और मेल गैमेट बाद में मैच्योर होते हैं। एग्जांपल मिरेबिलिस जलापा और फोरोक्लोक प्लांट, मिरेबिलिस जलापा और फोरोक्लोक प्लांट, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। यहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी होती है इन द जेनेटिक्स। तो ये आपका डाइकोगैमी हुआ। इसके बाद आता है हेट्रोस्टाइली और हेट्रोस्टाइल। देखिए कार्पल है, कार्पल में स्टिग्मा भी है, स्टाइल भी है, ओवरी भी है। तो स्टिग्मा के एट वन एंड ऑफ द स्टिग्मा प्रेजेंट द एट वन एंड ऑफ द स्टाइल प्रेजेंट द स्टिग्मा, और स्टिग्मा इज द प्लेस वेयर द पोलन ग्रेन्स आर सेटल्ड डाउन। तो यहां पर देयर इज द orientation of the style is not at the same level. It is a different type. It is a different level. There is a different orientation of the style. So that due to the different orientation in the style, pollen grains cannot be picked by the stigma. भाई मान लीजिए ये यहां पर स्टिग्मा है और ये यहां पे स्टाइल है। तो इसका ओरिएंटेशन इस तरह का है कि यहां पर जो आपके ये स्टिग्मा है, इट डजंट रिसीव द पोलन ग्रेन। तो इसे कहते हैं हेट्रोस्टाइल। इट इज अनदर मेथड टू एनकरेज द क्रॉस पोलिनेशन। एग्जांपल प्राइमूला, प्राइमूला के अंदर ऐसा होता है। एक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टर्निटी, मतलब यहां पे मेल और फीमेल फ्लावर है और दे बियर द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, बट ड्यू टू द जेनेटिक रीजन पोलन ग्रेन्स ऑफ द सेम स्पीशीज रीच ऑन द स्टिग्मा of the same flower but does not allow the germination of pollen grain at the stigma. स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन जाते हैं लेकिन उनका जर्मिनेशन नहीं होता। जेनेटिक गवर्न मैकेनिज्म है प्रिवेंट द सेल्फ पोलिनेशन। जब वो उनको जर्मिनेट नहीं होने देगी तो यहां पे सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, भले ही फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल हो। इनहिबिट द पोलन ग्रेन जर्मिनेशन, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होगा, वो पहुंच जाते हैं। एग्जांपल है टबैको एंड पोटैटो, टबैको एंड पोटैटो। यस, अंडरस्टैंड कि यहां पर ये जो है अब ऐसे यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब है फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, यानी कि या तो मेल फीमेल जो है दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। तो यूनिसेक्सुअलिटी, जहां पे यूनिसेक्सुअलिटी इज देयर, देन देयर इज द 100% चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, देयर इज नो चांस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। तो यहां पर इसमें हमारे एक मोनोसियस प्लांट होते हैं। मोनोसियस प्लांट वो होते हैं जिसमें मेल और फीमेल बोथ द फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। मेल भी और फीमेल दोनों फ्लावर जो है प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। मेल फ्लावर अलग होते हैं फीमेल, लेकिन प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। तो इसमें क्या आता है, मोनोसिस में जब होते हैं इस कंडीशन में ऑटोगैमी नहीं होती। ऑटोगैमी नहीं होती क्यों? क्योंकि यहां पर जियटनोगैमी होती है, जिसमें पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू कि यहां पर प्रिवेंट, हम इस मेथड से वी कैन स्टॉप द ऑटोगैमी बट कैन नॉट जियटनोगैमी। ये भी आपके क्वेश्चन मेडिकल वगैरह पूछ सकते हैं कि यहां पर हम मोनोसिस प्लांट में
ऑटोगैमी, जेटनोगैमी किसको रोक सकते हैं, किसको एनकरेज कर सकते हैं? तो हम यहाँ ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन जेटनोगैमी को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जेटनोगैमी, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, दोनों एक ही प्लांट पर होते हैं। तो यहां आप देखिए जेटनोगैमी स्टूडिया। इसके बाद डायोसियस प्लांट होती है। डायोसियस प्लांट में जैसे पपाया है और मलबरी है, पपाया और मलबरी, पपाया के अंदर का मेल और फीमेल दोनों अलग अलग प्लांट्स होते हैं। तो यहां भी इन बोथ द केसेस मलबरी एंड पपाया देयर इज द एनकरेज ऑफ द क्रॉस पोलिनेशन, नॉट द सेल्फ पोलिनेशन। तो these are the some methods which help, number one, increase the productivity, reduce the chances of inbreeding depression, which is possible in the self pollination. सेल्फ पॉलिनेशन में होता है, दिस इज जेनेटिक पार्ट हो जाता है कि सेल्फ पॉलिनेशन सेम कैरेक्टर और होमोजाइगोसिटी यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब है कि व्हेन द पोलन रेजसिया, इट इज द कार्पल, ये पूरा का पूरा हमारा कार्पल है, स्टिग्मा है, स्टाइल है एंड ओवरी है। ओवरी में यहां पर ये ओव्यूल है, इट इज द ओव्यूल। अब व्हेन द पोलन ग्रेन्स रिलीज फ्रॉम द एंथर and reach on the stigma of the same or another flower through any agency, may be biotic or abiotic, चाहे तो एजेंसी बायोटिक है या abiotic, reach on the stigma, it is by pollination. But when the pollen grains reach on the stigma, then another process start which is called pollen pistil interaction, यानी कि there is some relation, some interaction between pollen grain and the stigma. तो यहां पर इसमें इंटरेक्शन होता है if the pollen grains of same type, pollen grains same type के हैं, तो that is compatible और दैट इज अ राइट टाइम, यानी जब पोलन ग्रेन सेम टाइप के जाएंगे तो वहां जाने के बाद दे विल मेक द इंटरेक्शन विद स्टिग्मा एंड व्हेन द इंटरेक्शन इज ओवर देन द पोलन ग्रेन इज अलाउड फॉर जर्मिनेशन इफ दे आर कंपैटिबल और राइट वन। और इफ द पोलन ग्रेन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, अगर कहीं और से आ गया, कोई और पोलन ग्रेन वहां आ गया, यहाँ पे मान लीजिए ये राइट वाला नहीं आता, कोई और दूसरा आ जाता है, तो देन इट इज कॉल्ड इनकम्पेटिबल, इट इज कॉल्ड इनकम्पेटिबल। इसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स इज नॉट अलाउड टू जर्मिनेट, पोलन ग्रेन इज नॉट अलाउड टू जर्मिनेट बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर कंपैटिबिलिटी, यानी बिफोर द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा इट इज डिसाइडेड दैट whether the pollen grain is compatible or non-compatible or incompatible. समझ यहां पे? तो this is called pollen pistil interaction. इसके बाद आता है artificial hybridization. It is very important. देखिए ब्रीडिंग होती है, एक नेचुरल ब्रीडिंग होती है और एक आर्टिफिशियल कराई जाती है। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में आर्टिफिशियल पोलिनेशन कराया जाता है, और आर्टिफिशियल पोलिनेशन का मतलब है दोज पोलन ग्रेन्स हैव द गुड कैरेक्टर और डिजायर्ड कैरेक्टर, दे आर अलाउड टू सेटल ऑन द स्टिग्मा, यानी जो पोलन ग्रेन्स जिनके अंदर बढ़िया कैरेक्टर है, अच्छे कैरेक्टर है, दे आर अलाउड टू रीच ऑन द स्टिग्मा and allowed to germinate to there. तो इससे क्या होता है, आर्टिफिशियल पोलिनेशन होता है।
और जब आर्टिफिशियल पोलिनेशन हो जाता है, इट लीड्स टू द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स टू डिजायर्ड कैरेक्टर आर मिक्स, हाइब्रिडाइज हो गए, यानी वो हाइब्रिडाइज हो गए, उनके अंदर जो वहां पर कैरेक्टर आए हैं दे आर द डिजायर्ड कैरेक्टर, और डिजायर्ड कैरेक्टर से मतलब है दोज कैरेक्टर विच प्रोड्यूस द गुड फ्लावर, गुड सीड्स एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। इसके लिए हमारे पास जब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इससे हम डिजायर्ड फ्रूट्स एंड सीड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स और सीड्स बनेंगे। जब अच्छी क्वालिटी फ्रूट्स बनेंगे, सीड्स बनेंगे, तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। टाइप टू प्रैक्टिसेस आर यूज्ड। नंबर 1 इमैस्कुलेशन, सेकंड इज द पैकिंग। देखिए, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, यानी मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, देन stamen is removed, then stamen is removed, or removal of stamen is called emasculation. If the flower is bisexual, then the removal of stamen is done to there to prevent the pollination, and it is not possible in unisexual. Unisexual flower में we don't do the emasculation. वहां पे emasculation नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां पे सिर्फ फीमेल फ्लावर है, और फीमेल फ्लावर है तो उसके अंदर पिस्टिल है। जब हम यहां से emasculation करते हैं तो then stigma is covered by the butter paper। ये फ्लावर है, इसमें से हमने यहां से ये स्टेमन रिलीज कर दिए, और ये स्टिग्मा है। इस स्टिग्मा को हम कवर कर देंगे एक बटर पेपर से, मींस विच प्रिवेंट द पोलिनेशन, बिकॉज हियर वी वांट द पोलिनेशन ऑफ द डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स। तो दिस इज अबाउट all the topics। स्टूडेंट्स, अगर आपको कंटेंट बढ़िया लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इसको सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करें। टुमारो आई विल प्रेजेंट बिफोर यू with a new video, fertilization in flowering plants. My telephone numbers are given to here. You can be contact with me if you have any problem. Thank you.